मुझे लगा था कि अब बड़े होने का मतलब है आपको ये करना है, आप ये करो, आपको वो करना है, आप वो करो। दिया नहीं, लोगों के पीछे पड़ना, उनसे काम करवाना और प्लम्बर को बुलाना कि आ जाओ भाई, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, 2 घंटे हो गए, आए ही नहीं है, और घर में पाइप फटा हुआ है, फिर फोन करना, प्लीज मेरे भाई आ जा। बड़े होके हमको सब करने मिलेगा, सब करने मिलेगा, और जब तक हम बड़े होते हैं तब तक करने का मन नहीं करता। छुट्टी पे जाना है, यहाँ जाना है, देन यू रियलाइज कि जाने का मन तो है, बट उसके जस्ट पहले भी काम है, फिर वहां जाएंगे और वहां पे कुछ लोग आ रहे हैं जो मुझे पसंद नहीं है, फिर उसके बाद वापस आके काम करना है, तो अभी क्या करूं, तो सीधा मम्मी के ऊपर जाता है। फ्रेंड्स अगर किसी पार्टी में और मैं वहां नहीं हूँ, तो फिर मैं एक एक करके सबसे पूछती रहूंगी, और फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, उस इंसान ने कुछ कहा नहीं क्या, इस इंसान ने कुछ कहा नहीं क्या, एंड देन आई गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन, देन आई फील ओके कि चलो Then ठीक है, आई वाज basically, with imagination only, you've made such strong imagination that it feels like you were actually there. Alright, so today I have with me the cast of Adulting Season 3. I have with me Aisha and Yashaswini. Welcome. How are you guys doing? Very, very well. You know, एक तो मुझे आदत हो गई है, like whenever I see the two of you together, कि निखत और रे, you know, that's what comes to my head, and then I have to correct myself. No, it's Yashaswini and Aisha. But you can call us Nikat and Ray for today. yeah, I think I might just do that. So I'm just telling you in advance. It might happen. Fair enough. Deal. So we established that also. But it's like I was telling you before we started that I absolutely love the show. And I'm sure I'm not the only one. There's so many people out there who relate with it, who connect with it, you know, so much. And they've been waiting for it more than anything else. Tell me something about that. और इतने टाइम बाद क्यों इतना टाइम लगाया आपने? यार क्यों का मैं क्या जवाब दूं? मतलब हम एक्चुअली थर्ड सीजन आने वाला था 1 साल पहले, बट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द सिचुएशन द वर्ल्ड वाज गोइंग थ्रू, हम नहीं कर पाए, बट जैसे ही हमें मौका मिला सेफली शूट करने का, हम निकल पड़े। Lovely. Tell me something about this season. क्या होने वाला है अब कुछ? अगर आप हमें ऑफिस मतलब without revealing anything, but if you can just give us an insight into what should we be expecting as adulting fans. I think as adulting fans, you will see Nikhat is now more focused on her own life. Season 1, Season 2 में देखा है कि Season 1 में she was still struggling to find her place. Season 2 में वो बहुत focus थी कि रे की लाइफ में क्या हो रहा है, मम्मी पापा की लाइफ में क्या हो रहा है, घर पे क्या चीजें चल रही हैं, भाई की लाइफ में क्या हो रहा है। इस सीजन में पहली बार she is like, you know what, मुझे देखना है मुझे क्या चाहिए, और मुझे भी एक पार्टनर चाहिए अपनी लाइफ में, तो उसकी खोज चालू है इस सीजन में। Ray, what about you? सेम, इंडिपेंडेंटली थोड़ा फोकस है अभी अपनी अपनी लाइफ पे, बिकॉज रे तो वैसे भी काफी फोकस थी खुद की लाइफ पे। निखत का कैरेक्टर ऐसा था दैट शी wants to be involved in all the people that she cares about उनकी लाइफ में। तो जब कुछ टाइम के लिए रे और निखत अलग अलग शहरों में थे, बिकॉज निखत को अलग जॉब मिल गई थी, तो उतने टाइम में रे ने डिसाइड किया कि शी इज गोइंग टू take it a further step in her career, and that's what she's struggling with right now, trying to understand, trying to accept her reality, whatever it may be, and trying to adult. Another relatable factor there, because we are all either there or have been there, so another thing that definitely is going to be a relatable factor. But tell me something, the both of you've collaborated on a lot of projects, on a lot of sketches also, you know. But when you're coming back as Ray and Nikhat, how easy or difficult is it for you to get back into the character, especially after the fact that you've been shooting after a very long time? So how difficult or easy is it? I think हमारा एक स्विच है जो ऑन हो जाता है जब हम रे और निखत के आते हैं, तो I think it's been pretty easy. It's really something that happens to us
अंदर से ही जब हम कुछ कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगता. So it just happens whenever you're on set and when you read those lines. It's okay, you can pass. Sorry. That's completely okay. Sorry, I think we're all getting used to the at-home interviews. So we are. It's all above and beyond now. I know. तुम्हारे पीछे कोई ऐसा कैंगरू भी कूदते हुए जाएगा, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा. Okay. Yeah, उससे थोड़ा फर्क पड़ सकता है, but okay. इंडिया में कैंगरू? Yeah. But okay. Now since we're talking about adulting, and since like I said कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं which we either have done or have been doing, what is one thing about adulting that you dislike? I mean, I'm sure there are like a lot of things, but one thing that you just dislike about adulting. I really hate. Yes, I think I know what he's going to say, and I'm happy to it. बड़े ऐसा. Just talking about money and negotiating and making people do things and looking for a carpenter and convincing people to Aisha, please. डेफिनेटली, मतलब हर चीज. और ना मेरी मम्मी ने भी बहुत, जिस दिन मैंने कहा ना कि मैं बड़ी हो गई हूँ और अब मैं खुद डिसीजंस लूंगी और मैं खुद काम करूंगी, तो मेरी मम्मी ने मुझे देखा और उन्होंने कहा ठीक कर लो. तो वो जो डेविल मैंने अपने सर पे लिया है ना कि लोगों से बात करना, जो साथ में काम करते हैं या जो उनके डिसाइड करना, उनके sorry, I got lost in my head, but just like I've recently got a home loan. तो उन लोगों से बात करना, सबके पीछे पड़ना, ब्रो इतना मुझे लगा था कि अब बड़े होने का मतलब है आपको ये करना है आप ये करो, आपको वो करना है आप वो करो. नहीं, लोगों के पीछे पड़ना, उनसे काम करवाना और प्लम्बर को बुलाना कि आ जाओ भाई मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ. हाँ 2 घंटे हो गए आए ही नहीं और घर में पाइप फटा हुआ है, फिर फोन करना प्लीज मेरे भाई आ जा. So I think those things, सबसे काम करवाना and to be the responsible voice. Yeah. And what about the one thing that you like about adulting? That if I say I'm going to do something, they will not disagree. And क्योंकि तुम अब बड़े हो गए, ठीक है करो. Okay, fair. Aisha, what about you? I think same कि कोई कुछ कह नहीं सकता. They will not say no, you cannot do it. खुद गलत काम भी किए हैं और उसके पछतावे भी अब खुद पता चल जाते हैं, तो नाउ यू आर माइंडफुल कि ठीक है ये मुझे करना है बट इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बट कोई बोल नहीं सकता कि नहीं तुम ये नहीं. और आई हैव ऑलवेज हैड अ प्रॉब्लम विद अथॉरिटी, मतलब वो चाहे टीचर्स हो या बड़े लोग हो. तो नाउ आई एम लाइक ठीक है आई विल डू माय ओन थिंग. I will probably learn, regret and then learn. वो ठीक है, but I don't want to be told कि नहीं ये नहीं कर सकते या नहीं वो नहीं कर सकते. Lovely. Okay, and growing up, you know, we all feel कि भाई मैं बड़ी हो जाऊंगी तो का, you know, it's so nice कि मैं ये भी कर सकती हूँ वो भी कर सकती हूँ. जब तक you don't get that reality check, quite literally, you know, what is the one misconception that you had while growing up कि you know अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं ये बहुत आसानी से कर सकती हूँ. And when you're actually in the situation, you're like, what the hell? I mean, you know. So can you have any misconceptions that you had as a child about adulting? I recently realized कि मुझे हमेशा लगता था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना मैं अपने दोस्तों के घर 24/7 रहूंगी, रात भर मैं बाहर रहूंगी और मैं पार्टी करूंगी. पर अब जब बड़े हो गए तो होता ही नहीं है. रात के मतलब 1 बजे मैक्स ऐसा लगता है कि अगर अभी नहीं सोए तो कल का पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा. और अगर अभी ज्यादा पार्टी कर ली तो जो काम पेंडिंग पड़ा है वो कौन करेगा. क्या बड़े होके हमेशा ऐसा लगता था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं बहुत ज्यादा पार्टी करूंगी, मैं रात भर बाहर रहूंगी. पर अब वो बॉडी अलाउ नहीं करती है, क्योंकि जब तक आपके अंदर एनर्जी होती है नाइट आउट्स करने की और पार्टी करने की और ऐसा वाइल्ड चाइल्ड बनने की, तब तक आप बहुत यंग होते हो. व्हेन यू आर 20s, लेट 20s रादर, आपको रियलाइज होने लगता है कि आपकी बॉडी में वो क्षमता ही नहीं है. तो अब परमिशन है, अब कोई रोक नहीं रहा है आपको, बट अब ऐसा लगता है कि चलो अभी घर जाना है, अभी मुझे मेरा बिस्तर याद आ रहा है. I agree with you. That's actually very true. Yashaswini, do you have anything like a misconception that you had about adulting?
दैट ओनली कि बड़े होके हमको सब करने मिलेगा और जब तक हम बड़े होते हैं तब तक करने का मन नहीं करता. फिर यू वांट द थिंग्स दैट हैपन लेटर. अब और बड़ी चीजें करनी है पर उसके लिए और इंतजार करना पड़ेगा. दैट्स समथिंग आई स्ट्रगल विद कि उस मुकाम तक पहुंचने का इंतजार, वो उसमें ही मैं बोर हो जाती हूँ जिस चीज के लिए मैं एम कर रही थी उसके लिए. Dude, okay. So a lot of times, like how Aisha just also said, कि बहुत बार ऐसा होता है कि of course we're adults and we are we can take our decisions and we are very much capable of it. For example, we're in a party. Yeah, we have to go for a party. You can go, you have all the permissions. पर बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि यार मेरी मम्मी मना कर रही है. You have those bahanas because you don't want to go, because you don't want to go. Tell me a little about that. कभी ऐसी situation में आए और being adults, you have that authority. You have you can do it, but then you simply don't want to do it. Yeah, so you just make these bahanas. For sure. बहुत बार ऐसा होता है. फ्रेंड्स जो ट्रिप्स प्लान करते हैं एंड छुट्टी पे जाना है, यहाँ जाना है, देन यू रियलाइज कि जाने का मन तो है बट उसके जस्ट पहले भी काम है, फिर वहां जाएंगे और वहां पे कुछ लोग आ रहे हैं जो मुझे पसंद नहीं है, फिर उसके बाद वापस आके काम करना है, तो अभी क्या करूं, तो सीधा मम्मी के ऊपर जाता है. माय मदर इज वेरी कूल, उन्हें कोई इश्यूज नहीं है कि मैं जाऊं, जो भी बस ख्याल रखो. बट आई टेल हर लिसन, अगर इस फ्रेंड का फोन आए तो से दैट यू डोंट वांट मी टू गो, तो मैं बहुत आराम से उनके ऊपर डाल देती हूँ चीजें. What about you? Same, except my mom is not that cool, but she is, but it's just that with trips and everything हमेशा से बहुत लंबा प्रोसेस होता है to get permission. अभी भी मुझे पूरा खुला हाथ मिला नहीं है, but मैं वो अब फाइनली क्या बोलती हूँ, एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि जब मैं कुछ मांगू तो मुझे मना नहीं किया जाता है. तो वो शुरू हो रहा है कि मुझे नहीं जाना है तो मैं मॉम के ऊपर डाल दूं, पर वो स्टिल बिलीवेबल है मेरे फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि उनको अभी तक आदत है कि मुझे मॉम परमिशन शायद नहीं दे रही है जनरली. बट do you not have any FOMOs की बात? ऐसा होता है कि मतलब ट्रिप पे चलो नहीं गए या पार्टी में नहीं गए, फिर बाद में स्टोरीज देख करके, पिक्चर्स देख करके लगता है कि यार मैं आई एम वेरी गुड एट माइंड ओवर बॉडी. तो अगर मुझे फोमो हो भी रहा होता ना, मैं खुद को बोलती कि पर तुमने ये डिसाइड किया है ना, देखो तुम घर पे बैठी, तुमने ये पिक्चर देखी, तुम्हें ये बेड पे सो के करने मिला, तो यू आल्सो हैड अ गुड टाइम, तो इट्स फाइन. नो, आई फील फुल फोमो. और मेरे फ्रेंड्स अगर किसी पार्टी में और मैं वहां नहीं हूँ तो फिर मैं एक एक करके सबसे पूछती रहूंगी और फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, उस इंसान ने कुछ कहा नहीं क्या, इस इंसान ने कुछ कहा नहीं क्या, एंड देन आई गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन, देन आई फील ओके कि चलो ठीक है. बेसिकली with imagination only you've made such strong imagination that it feels like you were actually there to the party. Hilarious. Okay, another thing which I want to know is a lot of people, teenagers rather, who are stepping into adulting, जिनको बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल जोश है कि yes we're going to be adults now and all of that, but they sadly don't know the sad reality, because they think कि बहुत सी चीजें हैं जो उनको मिल जाएंगी, पर it's not the same. It just comes with a lot of responsibilities. कोई एक ऐसा tip या advice if you had to give to a person who's becoming an adult or who's just from a teenager become an adult or he's just venturing into adulthood, कोई एक ऐसा tip या advice जो कि आप देना चाहें? I have one tip and one advice. That's it. That take life very non-seriously. बहुत सारे इश्यूज ऐसे लगेंगे कि ओ इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, अब तो पता नहीं कैसे ही आई कैन गेट ओवर दिस, या मेरे और आपके बहुत सारे दोस्त छूटेंगे. आपको जो हमेशा से लगता था कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ये हमेशा मेरे साथ रहेंगे, वो नहीं रहेंगे. दे आर नॉट गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर. बट ठीक है, हर चीज जो भी लाइफ में हो फ्रॉम नाउ ऑन, जस्ट एवरीथिंग इज ठीक है, तो यू विल बी हैप्पी. अगर आप हर चीज पे फोकस करने लगोगे तो यू विल बी वेरी स्ट्रेस्ड. Yashaswini, what about you? As cliche as it sounds, it's not about the destination, it's about the journey. Adulting is a lifelong process. तो एक बहुत अच्छी पिक्चर में ये डायलॉग है कि जब जहां हो वही, मैं बहुत गंदा डायलॉग बोल रही हूँ, पर द आइडिया इज दिस कि जब जहां हो उसे एंजॉय करो ना. कुछ ना कुछ तो हमेशा छूटेगा. तुम्हें अभी जिस बात का स्ट्रेस है कि आगे क्या होगा, ये होगा, आगे जो होना होगा, अभी तुम स्ट्रेस तो चल, तू स्ट्रेस को एंजॉय कर, क्योंकि जब तुम खुश होगे ना
फिर तुम खुशी को ढंग से एंजॉय नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने स्ट्रेस को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। और जब तुम स्ट्रेस को पूरी तरह से एक्सेप्ट करोगे तो खुशी और 2 फोल्ड्स में फील होगी कि तुम्हें कि यू अर्नड दिस हैप्पीनेस आफ्टर क्राइंग फॉर 2 hours यू आर लाफिंग सो हार्ड, यू अर्नड इट, यू डिजर्व हैप्पीनेस। तो जब जहां हो This वहां is रहो। Baba Yashaswini. Wow, good job. तथास्तु तथास्तु। But this is actually so true. I do agree with you on that. That actually makes a lot of sense. Okay, lastly, for everybody out there who's eagerly waiting for adulting, what would you want to say to them? Your wait is over. I love this. I love this two brains but not two brains wala moments that happen. Yeah, and I'm like, what's happening? But yeah, it's almost here. Yeah. By the end of the next 2 weeks, you will have seen the whole season 3 because we drop, I think, 2 episodes a week. I think that's the plan. So And- that's great. Is this the last season, or can we expect more seasons? Do we have any insight on that? Okay, so there is still hope. There is still hope. This is not the end. So I'm glad about that. पहले सीजन 3 देखिए और देखिए कि आप देखना चाहते हैं चाहिए क्या? हाँ हाँ, फिर हम और decide देखना करेंगे। इतना देखा और इतना पसंद किया है, so I'm pretty sure that it's still going to reconnect. So नहीं. Never let anything get to your head. People can dislike you at any point. आपको मौका दिया जा रहा है, decide कर लो. Therapy session for her. Yeah. Everything I do is therapy. Oh God. Okay. So Baba Yashaswini ने बोल दिया है कि we actually should watch it and experience it and see whether or not we like it, and then we decide if we want the next season. I was just making it easy for you, by the way. But no, I mean, like I said, that it has connected with the audience so far, and I'm pretty sure that it is going to connect again. And it was so nice talking to the both of you. Thank you for connecting. This was a lot of fun, and I just want Thank to you. all the very best for adulting season. Yay, thank you so much. Thank you. Bye.